Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई यस्सू नू पुकारा अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई यस्सू नू पुकारा। गाए मेरे साथ। मेरी मदद नू रब पे आया, मेरी मदद नू रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, मेरे पैरां नू देवे खुलारा, मेरे पैरां नू बख्शे खुलारा, मदद लई यस्सू नू पुकारा। गाएं मेरे साथ। आपे मेरा यहोवा ताला, आपे मेरा यहोवा ताला, मेरे सिर ते ओ छां करन वाला, मेरे सिर ते ओ छां करन वाला, शुक्र उसे दा हरदम गुजारा, शुक्र उसे दा हरदम गुजारा, मदद लई यस्सू नू पुकारा। पुकारिए यस्सू को। मदद लई यस्सू नू पुकारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना विनतियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। Lord Jesus, we come before your throne of grace, Lord, gracious Lord, merciful, kind, abounding in love, King of glory, Jesus. We come into your presence, Lord. We come into your sacred presence, your holy presence, Lord. We come into your sacred presence, Lord, through the blood on the cross. The blood is our only respite. The blood is our only stay. The blood is the only rock, firm rock that we can stand on. We lean on the blood, Father. We depend on the precious blood of Yahushua HaMashiach. Hallelujah. We are who we are. We are what we are. Is because of the blood of Yahushua HaMashiach. Hallelujah. We thank you, Father. Lord, I pray for these prayer requests that have come. I lift them up before you. Father, I pray for Brother Sahil and his father who is in Pakistan. I pray for his healing in the name of Jesus of Nazareth. Father, I pray for Brother Samuel Mani who is in Delhi. Father, may you open up the floodgates of heaven to meet his needs, Father, that you will touch his father, touch his family. Father, I pray for the prayer request that Sabi Surjit sent for a lady, Lord, who is very poor, has little children, and she has blockage in her brain nerves. Father, I pray that your Spirit will flow, that you will save that life. You will make her live, Lord, for your glory. Hallelujah. I pray for Brother Balvinder Joel, sent a prayer request for his ministry, for his family, that you will bless him, Father. Father, I pray for Devinder Kullar from Britain. I pray for her husband, Paramjeet, and her children. May you stretch forth your hand and bless them. Father, I also pray for your daughter Sunita Kaur, who loves you and serves you in Britain, particularly for her daughter Raj. Lord, we bring her at the foot of the cross. Lord, we bring her under the fount
of the precious blood that oozed out of the veins of Emmanuel, the soul cleansing blood that liberates and sets free, to flow over Raj, your daughter. Father, I pray for Ruby Sanghera and her family, her loved ones. I pray, Father, that your true word, that the light of your true word will shine in their hearts in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, I release your presence and anointing over her family. Father, I pray for Brother Ravi Prakash Gupta. He's a seafarer. Maybe he is in the Orient or he has moved to the United States. I don't know, Lord. But you know him. So, Lord, I commend him into your hand. I plead your blood over Brother Ravi Prakash Gupta and his family. Father, I bless your servant Ratan Prakash from Delhi. I pray for him, his son, and his son's daughter for your healing anointing. I pray for Father Komal Masi and her husband and their children in the name of Jesus. Also pray for their sister Ritu, Father, for your blessing, for your hand, for your anointing. Father, we all lift up. Let's all pray for Brother Lalit, that the healing anointing will flow over Brother Lalit Mehra. Father, we bring Brother Lalit Mehra before your throne of grace and mercy, and we ask your healing anointing to flow over Brother Lalit Mehra right now, Father. Lord, I pray for Brother Sandeep. I pray for his daughter Sarah Christina, that you will heal her, Lord. Hallelujah. Father, I pray for the state of Himachal Pradesh, your people there, Lord, for Brother Jagir Masi and his family, Lord, in Himachal. And Lord, I also pray for Soni's family in Dera Gopipur, Lord. Your anointing will flow there. And people beyond Dera Gopipur, Lord, who have called upon your name and given their hearts to you. I pray for Sharda Devi, Lord, from Gagret area, for your anointing, for your blessing over those families in Jesus' name. Lord, I bless Millie Sehgal, your daughter from Australia. Bless her, Father. Father, raise her up to become a woman of God, so that your work is established in Australia, New Zealand, and Fiji, and other neighboring nations in the mighty name of Jesus. Father, I also pray for Poonam Gill. I speak blessing and anointing over her in the mighty name of Jesus. I pray for Sister Ashana Paul, pastor's wife from Chandigarh. May your hand be upon her. Lord, I pray for Tanuja Seth from Himachal. Your blessing, your spirit may move in Himachal, Father, like never before. I bless Brother Rakesh Kumar from Mehdpur and his household, Lord. I pray for Brother Mandeep Bitta, Lord, bless him, touch him, and Lord, anoint him. I pray for Sister Pooja Bisht over her household, your anointing, your presence. Lord, bless your servant Sandeep, Pastor Sandeep, Lord. Pastor Sam, Lord, bless him in the name of Jesus. Hallelujah. Father, I pray for Marcus Gill, your hand to be upon him and his family, and the other Gill family that is right by him in the name of Jesus. I pray for Brother Kundan Shah from Delhi. Bless him, Father. Stretch forth your hand. Lord, use him in your kingdom, Lord. Lord, equip him with necessary tools, Lord. He is your servant. Pour out your fresh anointing upon Kundan Shah. Pour out your fresh anointing upon lovely Shergill, your servant, Father. Hallelujah. Father, I bring Emmanuel Sohota and his family before you, his sons, Lord, who diligently study your word, and his wife, who is voracious reader of your word and desperately hungry and yearns for deeper things of the Spirit. Bless them, Father. I pray for Darshan Singh from Jalandhar. Bless him. Bless his family. Bless his household, King of glory. Bless, Lord. Send your mighty Spirit that will stir up the hearts of your people. Lord, that your people will long to see your glory. They will not be satisfied with mediocre. Father, the curse of mundane shall be broken. People will long for real presence of God. I bless Agnes Lal from Delhi and her husband Vinod Lal and their daughter and their son. May you use them, Father. Make them your tool, your vessels. Pour out your unction on them. I bless Sunita Nar. May your hand be upon Sunita Nar. Forge her, make her, Lord, a vessel for your glory. I bless Rohit Malik from Delhi and his household. I bless them in the name of Jesus of Nazareth. Father, we all pray for Sister Brenda Webster. May that cancer that is in her body be gone in the name of Jesus.
Cancer has no legitimate place in our body because Jesus has already broken the curse. I pray for Brother Raman Khan and his wife Reena Khan and their daughter and their sibling, Father, and their family members. I cover them under the blood. Lord Jesus, I pray for Sandeep Singh. Bless him. Bless his brother Gurdeep Singh. May your hand be upon them and upon their family. Lord, I bless Sister Anju Masi. Equip her, Lord. Equip her, Father. Show her your glory. Make her hungry for deep things of God. Make her desperate till she finds you. I pray that she will have an encounter with you, powerful encounter that will so radically change her and make her a woman on fire for your glory. Your glory she will radiate, hallelujah, through her aura, Father. I bless her in Jesus' name. I pray for Avatar Vurjman, Father. I release your anointing over Avatar and his family in the name of Jesus of Nazareth. Father, I pray for Pavan Virk. I pray for Mahir Ji. Lord, bless Brother Mahir Ji and Pavan Virk in the name of Jesus of Nazareth. हालेलुया. तेरे लहू को खुदावंद इन लोगों के ऊपर मैं खोलता हूँ, लहू की कुदरत को. Hallelujah. Bless them, Father. Bless Jagjit Evangelist. Bless this brother. Pour out your anointing on him. Father, I pray for Sumitr Kaur, Brother Emmanuel's mother. Father, let that pain go from her right arm in the name of Jesus. Let it go. Let it go, Father. Heal her body in Jesus' name. I pray for Diana Christie, Canada, Father. Diana Christie from Canada. Bless her family, bless her children, bless her husband, bless her entire household. May there be a mighty stirring, Lord, in Canada in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Tera dhanyavad ho. Lord, I pray for those friends, Malik family from Jammu Kashmir, Lord God. I cover them under your blood, Father. And the other family, Lord, from Kishtwar, from Jammu Kashmir, I cover them all under the blood of Jesus. Lord, I bless Brother Ravi Lohia, who is online today. Bless Brother Ravi Lohia. May your hand be upon him, Lord Jesus. I bless Brother Davia Gulam. Hallelujah. Lord, release your anointing. Heal whatever is the neuro problem, Father. I pray for Anil Kumar, my brother in Britain. Bless his family. I also bless Rajat Masi. May your hand be upon Brother Rajat Masi, Lord. I bless Liaquat Gill, Lord. May your hand be upon Liaquat Gill. I bless Pastor Satpal, Lord God, Pastor Satpal Singh, and I bless his son who is in the Middle East. I bless his other sons and the work, the business that they do, Lord, and the ministry that you've given to this man. Lord, bless Manisha Singhi. Lord, pour out your anointing upon Manisha Singhi in the mighty name of Jesus. Lord Jesus, heal your daughter Monica Christian. Lord, her whole family we bring before you, Lord God. Lord, we break the hold of this vicious virus, corona. Lord, in Jesus' name, pour out the oil of the anointing over Monica Christian. Lord, I bring her daughter Parita and her son before your throne of grace and their entire household, Lord. Lord, we bless Brother Satya Narayan. He's your servant, Lord. He goes from town to town, place to place. He ministers your word, Father. He is a real, genuine man of God. Bless that man, Father. Use him, Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, where he ministers and serves you. Hallelujah. Lord, I pray for Brother Amrish Kumar. Bless Brother Amrish Kumar. Lord, anoint him with fresh fire, fresh anointing. Bless his family in the name of Jesus of Nazareth. Lord, I also pray for Sister Neetu Kumar from Delhi. I bless Sister Neetu Kumar in the mighty name of Jesus. May your hand be upon her, Father. Father, bless Brother Mangal Thapa from Nepal. I also pray for other congregations, friends who are connected in Nepal. Lord, I pray for them in the name of Jesus. A mighty stirring in Nepal in Jesus' name. Lord, I pray for Tarash Balba in the United States. Move in his heart. Hallelujah. Move, Lord. Move in the mighty name of Jesus of Nazareth. Father, I pray for Richa Masi and her family. I pray for her sister Ruisha. I pray for Sachin Verma. I pray for Brother Sachin Verma's other two brothers. I release your anointing, Father, and your mighty hand upon them in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Dhanyavad ho. Hallelujah. Lord, I also pray for other prayer requests that I am missing right now, Father. खुदावन तू उनके ऊपर भी अपना हाथ बढ़ा, अपनी कृपा और अनुग्रह को हाथ को बढ़ा खुदावन.
दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। है कल तो अपनी कल्ले तेरे वास्ते मदद, है कल तो अपनी कल्ले तेरे वास्ते मदद, सहून वे चोया पे संभाले तेनू सदा, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। खुदावंद, मैं भाई रॉबी जॉन को और उनके ब्रदर को जो इटली में है तेरे लहू में छिपाता हूँ। खुदावंद, इटली में जो और फैमिलीज़ हैं उनको भी तेरे सामने लाता हूँ खुदावंद, और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट बेल्जियम से, स्पेन से, सबको तेरे आगे लेकर आता हूँ खुदावंद। तेरा हाथ बढ़ा के छू खुदावंद। हालेलुया, इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैंने एक दिन आपको बता रहा था प्रेरितों के काम 13:26 में परमेश्वर एक अद्भुत गवाही देता है एक व्यक्ति के लिए, जो हमारा पिता है, जिसका नाम है राजा दाऊद। परमेश्वर उसके विषय में एक सोलो टेस्टिमोनी है। परमेश्वर कहता है, ही इज़ अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, अ मैन हु इज़ आफ्टर माई हार्ट। ही इज़ नॉट अ मैन हु इज़ आफ्टर वर्ल्डली फेम, a man who is not after worldly material things, worldly glory, silver, gold and diamonds and पृथ्वी की चीज़ों के पीछे नहीं है। प्रभु कहता है, दाऊद मेरे दिल के पीछे है। A man who goes after my own heart। आप देखिए, राजा शाऊल और राजा दाऊद को आपस में कंपेयर कीजिए। शाऊल के पाप राजा दाऊद के पाप के सामने छोटे हैं, लेकिन देखिए शाऊल का दिल और राजा दाऊद का दिल, दोनों के दिल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। शाऊल 40 वर्ष इज़राइल का राजा रहा। जब शाऊल इज़राइल का राजा था, उस समय परमेश्वर के ये जो ऐद का संदूक है, ये इज़राइल में नहीं, ये जो ऐद का संदूक जिसके ऊपर ये करूब है, जहाँ पे सेनाओं का यहोवा विराजमान होता है, ये किसी हैकल खैमा में नहीं रखा गया था। इसके ऊपर यहोवा की हजूरी वास करती है। इसके ऊपर ब्लड चढ़ाया जाता था, प्रायश्चित के दिन कुर्बानियाँ की जाती थीं। ये नहीं था इज़राइल में। शाऊल को इसकी परवाह नहीं थी। ये इस्राएलियों के जीवन की लाइफ लाइन है, क्योंकि ये करूब ऐसे देखते हैं नीचे झुक के आश्चर्यजनक ढंग से उस ब्लड को, जिस ब्लड के अंदर, वो जानवरों का ब्लड था, लेकिन उसके अंदर भी कुदरत थी पाप ढांकने की, माफ़ करने की नहीं थी। लेकिन वो परमेश्वर के क्रोध को 1 साल के लिए रोक देता था। जानवरों का लहू इंसान के पापों को बख्शता नहीं है, रोकता है उसके दंड को, क्योंकि जानवरों ने पाप नहीं किया था। हालेलुया। बकरों और छतरों का लहू, उसे ऐसे हैरानी से कुरूब देखते हैं, क्योंकि उनमें लहू नहीं है, और परमेश्वर की व्यवस्था को बड़ी हैरानी से देखते हैं। और वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, मैं यहाँ तुझे मिला करूँगा। यहाँ पे यहोवा की हजूरी वास करती थी। शाऊल ने यहोवा की हजूरी को वापस लाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। हालांकि अगर इज़राइल की आप सेकुलर हिस्ट्री पढ़ेंगे, शाऊल एक ज़बरदस्त पॉलिटिशियन था, शाऊल एक ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट था, शाऊल एक ज़बरदस्त मिलिट्री जनरल था। हालांकि वो गोलियत से डर गया था, ही चिकनड आउट टू सी गोलायत, बट ओवरऑल he won many wars for Israel. He extended the Jewish territory. He subjugated many nations.
and brought them under the Israeli domain. They were paying taxes to Saul the king. इज़राइल की इकोनॉमी बढ़ रही थी, विकास हो रहा था। आज दुनिया में यही नारा है ना, विकास, तरक्की, विकास। चरित्र बेशक गटर में गिरा हो, आत्मिक जीवन बेशक पतन हो गया हो, विकास, मनी। तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़िए। पहला राजा, दूसरा राजा, इवन पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, ये किताबें बहुत ज़बरदस्त हैं। इज़राइल के उत्तरी राज्य के भी 40 के करीब राज्य हुए, दक्षिणी के भी 40 के करीब राज्य हुए। इन राजों के जीवन काल, जब ये मर जाते थे राजे, इनको दफन कर दिया जाता था। आपको मालूम यहोवा परमेश्वर क्या लिखवाता था स्क्राइब से इनके विषय में? जो राजा धर्मी होता था उसके विषय में लिखा जाता था, वो यहोवा अपने परमेश्वर के मार्गों में चला और उसने अपने परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न किया। वो मर गया और उसे मिट्टी दे दी गई। जो दुष्ट होते थे उनके विषय में लिखा जाता था, उसने बहुत दुष्टताई के काम किए। वो अपने दुष्ट जो पुरखे थे उनके पद चिन्हों पे चला और उसने यहोवा को क्रोध दिलाया और इज़राइल को पथभ्रष्ट किया। वो मर गया, उसे दफन कर दिया गया। बाकी बातें परमेश्वर नहीं लिखता, कितना मटेरियल ब्लेसिंग आई, कितनी टेरिटरी एक्सटेंड हुई, कितनी बड़ी मिलिट्री थी, कितना ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट था, कितनी ज़बरदस्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आती थी, कितना ज़बरदस्त मिलिट्री खड़ी किया, कितना विकास किया। गॉड इज़ लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट। परमेश्वर सिर्फ ये कहता था, या वो मेरे संग चला या वो मेरे संग नहीं चला। शाऊल को 40 साल मिले, शाऊल ने कभी यहोवा को नहीं ढूंढा, यहोवा के पीछे नहीं गया। आपको मालूम क्यों? क्योंकि शाऊल की शुरुआत ही अपने पिता की गधी ढूंढने से हुई। वो अपने पिता की गधियों की खोज में था, पवित्र आत्मा की खोज में नहीं था। उसे पवित्र आत्मा मिला, लेकिन उस पवित्र आत्मा ने शाऊल का चरित्र, जीवन बदला नहीं। वह परमेश्वर का भूखा प्यासा नहीं हुआ। राजा दाऊद कभी भी ताजो तख्त की होड़ में था ही नहीं। वो अपने फाइनल टीन्स में था जब उसे अभिषेक कर दिया सैमुएल ने। लेकिन वो 17.5 साल राजा नहीं बना। जब उसके ऊपर अभिषेक पोर किया, तर हो गया यहोवा के जलाल से। वो फिर अपनी भेड़ बकरियां लेके चराने चला गया। उसने ये नहीं कहा मैं राजा बन गया हूँ, शाऊल परे हट, मुझे सिंहासन दे। नहीं, हालेलुया। 17 साल पहले यहोवा की नज़र में वो राजा बन गया था, लेकिन 17 साल शाऊल गद्दी पे बैठा रहा। शाऊल जेलसी से भरा है। दाऊद शाऊल के साथ भलाई करता है, दाऊद गाता है, उसकी बदरू निकलती है, लेकिन फिर भी भाला मार के उसे मारना चाहता है। दाऊद से अपनी बेटी की भी शादी करता है, उसे अपना दामाद बनाता है, क्योंकि दाऊद वो काम करता है जो कोई कर नहीं पाता है। असल में उसने उसकी बेटी को जीता है, लेकिन उसकी बेटी भी, उसका डीएनए भी भला नहीं है। दाऊद के पास अफसर हैं शाऊल को मिटाने के, लेकिन दाऊद नहीं मिटाता। हालेलुया। दाऊद यहोवा का खोजी है। शाऊल कुर्सी का, सिंहासन का, मटेरियल चीज़ें का, संसारिक वस्तुओं का, दुनिया में अपने नाम का खोजी है। तो जैसे राजा दाऊद राजा बनता है, 40 साल उसने पूछा ही नहीं कहाँ ऐद का संदूक जिसके ऊपर हमारा परमेश्वर यहोवा विराजमान रहता है। लेकिन राजा दाऊद ने क्या किया मालूम आपको? पढ़िए एक वचन जल्दी से, पहला इतिहास की पुस्तक जल्दी से निकालिए, पहला इतिहास 13 अध्याय। जैसे राजा दाऊद राजा बना, राजा दाऊद के 2 अभिषेक हुए। एक तो उसको नॉर्दर्न किंगडम का राजा होने के लिए किया गया, फिर उसको अल्टीमेटली हिब्रोन में मुकम्मल राजा बनाने के लिए अभिषेक कर दिया गया। तो जैसे राजा दाऊद राजा बना, दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। तब दाऊद ने इज़राइल की सारी मंडली से कहा, यदि ये तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो इज़राइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं, उनके साथ जो याजक और लेवी और अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी संदेशा कहला भेजें कि हम इकट्ठे हो जाएं और हम अपने परमेश्वर के संदूक को यहाँ ले आएं, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं गए थे, इसके पास नहीं गए। यहाँ पे विराजमान है यहोवा। उसने राज चलाया, सियासी विकास किया, तरक्की की, धन अर्जित किया, मिलिट्री बनाई और बहुत अनाज पैदा हुआ होगा। लेकिन आपको मालूम ये है, आप संसार में क्या इकट्ठा कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे दैट विल मीन एब्सोल्युटली नथिंग।
दिस इज व्हाट विल एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू। ये हजूरी खुदा की, हालेलुया। यही आएगी एंड में आपके काम। लिखा है कि हम उसके समीप नहीं गए तो हम लेकर आए। तब समस्त मंडली ने कहा कि वैसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम। तो दाऊद देखिए बहुत उत्साहित था। दाऊद प्रभु की हजूरी से प्यार करता है। क्यों? क्योंकि दाऊद एक गडरिया है, अपनी भेड़ों को ले जाता है, महीने महीने बाहर रहता है। रात के पहरों में वो कहता है, यहोवा मैं उठ के तेरा धन्यवाद करूँगा। फिर राजा दाऊद कहता है, आई विल वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड आई विल प्रेज दी ओ लॉर्ड। फिर एक ज़बूर में राजा दाऊद कहता है, थ्रू द वॉचेज ऑफ नाइट आई विल प्रेज दी। 4 वॉच होती हैं रात में, 12 घंटे, 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 4 वॉचेज होती हैं। हर 3 घंटे के बाद राजा दाऊद कहता है, मैं तेरी स्तुति करूँगा। थ्रू द वॉचेज ऑफ नाइट आई विल प्रेज दी ओ लॉर्ड। फिर राजा दाऊद क्या कहता है, व्हेन द डे डॉन्स, बिफोर द डे डॉन्स आई विल टेक द हार्प एंड आई विल सिंग अनटू दी ओ लॉर्ड। तो वो लिखता है, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा। शाऊल के लिए यहोवा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन है, दाऊद के लिए यहोवा जीवित पर्सन है। शाऊल धर्म को मानता है, यहूदी धर्म को। दाऊद यहोवा की स्तुति करने वाला व्यक्ति है। आज चर्च का यही हाल है। कलीसिया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन बन गई है। बहुत से प्रचारक, प्रीचर, पासवान प्रोफेशनल परफॉर्मर हैं, जिन्होंने संडे को प्रोफेशनली परफॉर्म करना है। दाऊद ऐसा नहीं है। दाऊद दिल से यहोवा का तालिब है, उसे ढूंढता है। दाऊद जो रिलीजियस प्रोटोकॉल्स हैं उनको नहीं मानता, क्योंकि दाऊद यहोवा के दिल के पीछे है। तो वो आनन फानन में जल्दी से बिना कंसल्ट किए एक नया लकड़े का गड्ढा बना के उसके ऊपर ले आते हैं, ऐद के संदूक को रख के, लेकिन यहोवा की हजूरी मार देती है ऊजा को। कहाँ पे मारती है? थ्रेशिंग फ्लोर में। खैर, मैंने ये मैसेज दिया आपको, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, वो सुनिएगा उसे फेसबुक से निकाल के। तो फिर बाद में राजा दाऊद प्रॉपरली कंसल्ट करके ऐद के संदूक को लाता है। 15 अध्याय में ऐद का संदूक आ जाता है और वचन में लिखा है, राजा दाऊद नाचता आता है ऐद के संदूक के आगे। तुरियाँ फूकी जाती हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, राजा दाऊद नाचता आता है। हालेलुया। ऐसा है राजा दाऊद, यहोवा की हजूरी का भूखा और प्यासा है। कहता है परमेश्वर से, जैसे हिरणी प्यासी तेरी, वैसा मैं तेरा प्यासा हूँ। हे परमेश्वर, मैं कब तेरे भवन में आऊँगा और तेरा दीदार करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी का तालिब है, मुश्ताक है। हालेलुया। तो राजा दाऊद ऐद के संदूक को लेकर आता है, बड़े जश्न के साथ नाचता हुआ आता है। और उसकी पत्नी, जो कि राजा की बेटी है, वो बड़े लोग हैं ना, राजा हैं, रजवाड़े हैं, उसका राजा दाऊद को परमेश्वर के ऐद के सिंहासन के आगे नाचना अच्छा नहीं लगता। हालांकि उसका बाप गधियों की भाल करने वाला था, उसे यहोवा ने राजा बनाया है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। मुझे याद है हमें यहोवा ने कहाँ से उठाया, घूरे के ढेर से उठा के खड़ा किया। हम कभी भूलेंगे नहीं। मैं साइकिल चला चला के सेवा करता था। मैं इंजीनियर था, स्वीडिश कंपनी में जेई लगा था, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी और जगह जगह साइकिल चला चला के घूम घूम के सेवा करता था। आई विल नेवर फॉरगेट फ्रॉम वेयर जीसस पिक्ड मी अप। कभी मत भूलिए किस घूरे के ढेर से उसने आपको उठाया और आपको आशीष दी। राजा दाऊद कभी नहीं भूला। शाऊल की बेटी को कॉम्प्लेक्स है, किस चीज़ का? अपनी डिग्निटी का, ऑनर का, अपनी रॉयल्टी का। हमारी रॉयल्टी यहोवा परमेश्वर के चरणों में उसकी उपासना करने में है। हालेलुया। एक फॉल्स वो पहन के मत रहिए, सफिस्टिकेटेड स्वाब काइंड डिग्निटी, ये फॉल्स है। तो राजा दाऊद ने क्या किया? नाचते गाते यहोवा के अहद का संदूक लेकर आया। उसकी पत्नी ने उसे तुच्छ जाना, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी। शी नेवर बिकेम फ्रूटफुल। उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी रॉयल्टी में,
क्योंकि दाऊद के बीज में से मसीह ने आना था। लेकिन यहोवा ने वो प्रिविलेज नहीं दी मीकल को कि यीशु मसीह मीकल के सीड में, मीकल के एग्स में से आ सके। ये प्रिविलेज नहीं दी परमेश्वर ने, क्योंकि वो मॉक कर रही है यहोवा की हजूरी के आगे सादगी से नाचने और स्तुति करने वाले लोग। आपको मालूम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं क्रिश्चियन, बड़े इंटेलेक्चुअली, सब कुछ इधर इंटेलेक्ट में है, दिखावा है। मतलब बंदगी में जाना है तो जैसे कि आप फैशन पेजेंट में आए हैं, फैशन पेजेंट के अंदर आए हैं, मतलब कई लॉजिक देते हैं लोग। अरे भैया, ये नहीं मैं कह रहा, इट्स अ बैड थिंग टू ड्रेस नाइसली एंड लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए ड्रेस करना, आपके परमेश्वर की हजूरी में जाने की भावना ये है दैट वी हैव कम टू सीक यू लॉर्ड, हालेलुया, ये है हमारी भावना। यार बढ़िया बात है, वी ड्रेस अवर बेस्ट, दैट्स फाइन, बट लेट दैट नॉट ओनली बी द मोटिव। राजा दाऊद मस्त होके नाचता आ रहा है, मतलब उसकी बीवी को लग रहा है कि ये अनडिग्निफाइड है नौकरानियों के आगे राजा का ऐसा नाचना। एक प्रोटोकॉल है रॉयल्टी का। राजा दाऊद यहोवा के आगे कोई प्रोटोकॉल नहीं मानता, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको प्रिविलेज नहीं दी। परमेश्वर की अगर वो भक्त होती, दासी होती, तो जीसस क्राइस्ट कुड हैव कम थ्रू हर जिनोम, हालेलुया। तो दाऊद ने यहोवा परमेश्वर के लिए क्या किया? 15 अध्याय में आइए, पहला इतिहास 15 अध्याय। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार किया करके एक तंबू खड़ा किया। दाऊद ने यहोवा के लिए क्या बनाया? तंबू। ओहेल वर्ड है, ओहेल हिब्रू वर्ड है, ओहेल। दाऊद ने यहोवा के लिए तंबू बनाया, हालेलुया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसके लिए चुना है। वह परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने समस्त इजरायलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि वह यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाएं जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। तो अब आप पढ़ेंगे, राजा दाऊद ने सबकी ड्यूटीज़ लगाई अलग अलग लोगों की। आपको मालूम, एक खूबसूरत तंबू बनाया, उस तंबू के अंदर इसे रख दिया गया, ऐद के संदूक को। और राजा दाऊद ने, मैं आपको बता रहा था, 24 कोर्सेज बनाए। सैमुएल नबी ने 16 कोर्सेज बनाए थे, लेकिन राजा दाऊद ने उसे 24 कोर्सेज कर दिया। उसी का मॉडल है 24 एल्डर्स हेवन में, जिनके हाथ में कटोरे हैं, जो मैं आपको कल और परसों बता रहा था। 24 कोर्सेज बनाए। 24 कोर्सेज में लगातार दाऊद के तंबू में यहोवा परमेश्वर की उपासना होती थी 24/7। 4000 से ज़्यादा गाने वाले थे, साज बजाने वाले, गाने वाले, यहोवा के भवन में खड़े होके वो दल बांध के यहोवा की स्तुति गान करते थे। दाऊद के खैमा में कभी स्तुति रुकी नहीं। दाऊद के खैमा में यहोवा के सन्मुख गाए जाने वाले गीत कभी रुके नहीं। और आपको मालूम सबसे खूबसूरत बात क्या थी दाऊद के तंबू की? ये ओपन था। ये ऐद का संदूक जिस पे करूब हैं, जिसके ऊपर सेनाओं का यहोवा, इज़राइल का राजा धीराजा विराजमान रहता लहू के ऊपर, ये ओपन था फॉर एवरी आई टू व्यू। इसे होली ऑफ होलीज में रखा गया था मूसा के खैमा में, और होली प्लेस में भी कोई घुस नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया। लोग सिर्फ आउटर कोर्ट में रहते थे, कोर्ट के अंदर भी याजक जाता था। कोर्ट, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस, ऑर्डिनरी बंदा नहीं जाता था। लेवी एक हद तक जाते थे, याजक एक हद तक जाते थे, महायाजक यहां तक पहुंचता था, वो भी साल में एक बार, वंस। परमेश्वर की पवित्रता ही बड़ी अजीम है। कई बार इस तरह की डाइल्यूटेड गॉस्पल को प्रीच किया गया है कि लोगों को मालूम नहीं है परमेश्वर की होलीनेस क्या है। हालेलुया। अगर आप वचन में पढ़ेंगे, यहां पे पढ़ेंगे, मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, निर्गमन की पुस्तक में से एक वचन पढ़ता हूं।
उसके आखिरी वचन है 40 अध्याय के 34 से, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। जब खैमा बन गया, मूसा ने खैमा को डेडिकेट किया। मूसा ने खैमा को डेडिकेट करते, बाहर ब्रेजन ऑल्टर है, तांबे की पीतल की एक जगवेदी थी, उसके ऊपर जानवर की कुर्बानी रखी और उसने हाथ उठा के यहोवा का नाम पुकारा। स्वर्ग से आग आई उस कुर्बानी के ऊपर, स्वर्ग की आग ने उस कुर्बानी को भस्म किया। उस आग में से आग लेकर अंदर अंगार जलाए गए। कहाँ पे? गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पवित्र स्थान में जगवेदी है सोने की, जहाँ पे धूप धुखाई जाती है, जहाँ से प्रार्थनाएं असेंड करती हैं हेवन में, वहाँ पे वही आग डाली गई जो स्वर्ग से उतरी। और ये क्षमादानों को, इसके अंदर तेल भर के जैतून का खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, उसी आग से आग लगाई गई। और यहोवा ने कहा ये स्वर्ग से आग उतरी है, इस आग से ये सारा काम चला, अभी आग बुझनी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था एक दिन कि आग स्वर्गीय है, पृथ्वी पे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आप आग को। आप बोले मैं टीवी मिनिस्ट्री शुरू करूंगा, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बड़ी तगड़ी क्वायर बना लेंगे, हम अपना म्यूज़िक चेंज करेंगे, पॉप रॉक हैवी मेटल सब कुछ बीच में डालेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, हम बड़ी ज़्यादा पब्लिसिटी करेंगे, हम सड़कों पे डोर टू डोर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, बिल्डिंग खड़ी करेंगे, पार्टनरशिप खड़ी करेंगे, मिनिस्ट्री फैलेगी। आग चाहिए स्वर्ग से। परमेश्वर का काम स्वर्ग की आग के द्वारा होता है। मनुष्य के यत्न का फायदा तब होता है जब आग उतर आए। परमेश्वर का हर काम आग में शुरू हुआ। जब कैन और हाबिल ने अपनी कुर्बानियां रखी, यहोवा ने हाबिल की कुर्बानी ग्रहण की, तो कैन को क्रोध आ गया, उसका मुंह उतर गया। उसे कैसे पता लगा कि हाबिल की कुर्बानी ग्रहण हुई? क्योंकि यहोवा ने स्वर्ग से आग भेजी। हर राइट ऑफरिंग को स्वर्ग की आग ग्रहण करती है। ये आपकी बॉडी जब सेंक्टिफाई होगी, स्वर्ग की आग इस पे मोहर लगाएगी। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही कहता है। वो कहता है मैं तो पानी का बपतिस्मा देता हूँ, वो जो मेरे पीछे आ रहा वो महान है, वो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। स्वर्गीय आग का उतरना अत्यंत आवश्यक है। आप कहें हम सीकर सेंसिटिव चर्च बनाएंगे, हम चेंज कर देंगे रूल्स को, हम जो रेलेवेंट कल्चर है, कल्चरली रेलेवेंट गॉस्पल प्रीच करते हैं अमेरिका में। ये जो गॉस्पल है, इस गॉस्पल के कंटेंट चेंज कर दें कोई बात नहीं, इसको कल्चरली रेलेवेंट बनाएं। फिर ऑल इंक्लूसिव गॉस्पल, सब लोगों को एम्ब्रेस करने वाला सुसमाचार, यही है शैतान का सुसमाचार, यही है ऑल एम्ब्रेसिंग गॉस्पल। समझ रहे हैं आप? यही है सीकर सेंसिटिव गॉस्पल, यही है एक्यूमेनिकल गॉस्पल, झूठी गॉस्पल, जिसमें सब प्रसन्न हो, बहुत बड़ी भीड़ हो, और हम कहें हम एशिया में क्या वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं। प्रभु बताएगा कौन बड़ा और कौन छोटा है। प्रभु अपने गज से नापेगा, अभी अपने फॉल्टी गज से मत नापो आप। तो वचन में लिखा है पाप आ गया जब इज़राइल के अंदर, तंबू बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इज़राइल ने बलवा कर दिया, हजूरी उतर आई। यहाँ पे लिखा है पर मूसा उसके अंदर घुस नहीं सका, हैकल के अंदर नहीं जा सका। तो क्या लिखा है? इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब तक वह बादल निवास से ऊपर उठ जाता था तब वह कूच करते थे, यदि वह ना उठता था, जिस दिन तक ना उठता था उस दिन तक वह कूच नहीं करते थे। इज़राइल घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास था, रात को उसी बादल में आग उन सभी को दिखा करती थी। रात को आग का खंबा, दिन में जलाल का बादल। लेकिन परमेश्वर किसी को घुसने नहीं दे रहा, मूसा को घुसने नहीं दे रहा था, हारून घुस नहीं पा रहा था। आपको मालूम क्यों? क्योंकि कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए और पाप आया। तो परमेश्वर तीसरी पुस्तक देता है मूसा को, लेवे व्यवस्था। इस किताब के अंदर बताया है शुद्धता और अशुद्धता क्या है, पवित्रताई और अपवित्रताई क्या है,
परमेश्वर के सामने रोशनी क्या और अंधेरा क्या है, याजकों की पवित्रताई क्या है, लेवियों की पवित्रताई क्या है, महायाजक की पवित्रताई क्या है। यहोवा अति पवित्र परमेश्वर है, उसकी पवित्रताई को कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते, वो नहीं मिलेगा, वो किसी को अपनी हजूरी के बादल में घुसने नहीं देगा। तो लेवी व्यवस्था में कुर्बानियाँ बताई गई, कौन कौन सी कुर्बानी की जाए ताकि तुम यहोवा के निकट जा सको। उस लहू के द्वारा, कुर्बानी के द्वारा पाप को रोका जा सके, उसको ढांपा जा सके। और याजक कैसे शुद्ध होंगे, कैसे पवित्र किए जाएंगे, कैसे वस्त्र पहनेंगे, कैसा आचरण होगा, नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, उनका सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, स्पिरिचुअली कैसे क्लीन होंगे, पूरी पूरी बातें यहोवा परमेश्वर लेवी व्यवस्था की किताब में बताता है। पवित्रताई के बगैर कोई यहोवा को नहीं देख सकता। सीकर सेंसिटिव गॉस्पल में सूडो लव की गॉस्पल प्रीच की गई है। गॉड इज लव, गॉड लव्स यू, गॉड इज, अरे भैया गॉड इज होली। ऑल थ्रू आउट इटर्निटी उसके जो मोस्ट सेक्रेड चेंबर्स हैं स्वर्ग के, उनके अंदर जहां वो महान परमेश्वर विराजमान है, उसके आगे बहुत होली रैंकिंग सराफ हैं जो दो पंखों से उड़ते हैं, दो से मुंह और दो से पांव ढांकते हैं। इतने पवित्र सराफ हैं तो भी, और यही कह रहे हैं, शायद ट्रिलियंस ऑफ ईयर से ये बोल रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। खदूश 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 यहुआ सबायो, खदूश 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 यहुआ सबायो, खदूश 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 यहुआ सबायो। मेरे पीछे बोले आंखें बंद करके, खदूश 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 यहुआ सबायो, खदूश 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 यहुआ सबायो, खदूश 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 यहुआ सबायो, खदूश 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 यहुआ सबायो। हालेलुया। बोलिए 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ के आपकी बॉडी रिवर्बरेट करने लगेगी, आपका एक एक डीएनए का सेल रेजोनेट करेगा, चमकने लगेगी आपकी खलड़ी और चंगे हो जाएंगे आप। वचन में लिखा है यहोवा अति पवित्र परमेश्वर है। उसने मूसा को भी आने नहीं दिया क्योंकि पाप आ गया। हालेलुया। तो जब लेवी व्यवस्था में परमेश्वर के विधान, सब बातों को सही किया गया, शुद्ध किया गया, कॉन्सिक्रेट किया याजकों ने, लेवियों ने अपने आप को पवित्र किया और कुर्बानियाँ और भेंटें चढ़ाई गईं। हालेलुया। अब देखिए क्या लिखा है। अब गिनती की पुस्तक में आइए, उसका पहला वचन। इसराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीने के जंगल में मिलाप तंबू में से मूसा से कहा। मिलाप तंबू में मूसा से कहा। अब मूसा अंदर गया है, पूरी लेवी व्यवस्था में नहीं गया, वो जाने नहीं दिया जलाल ने, क्योंकि इज़राइल में पाप है। अब वो अंदर गया। क्या लिखा है? को यहोवा ने सीने के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। मिलाप वाले तंबू में अब मूसा गया और अब मूसा से यहोवा परमेश्वर बातें कर रहा है। वचन को पढ़ें बारीकी से, गहराई से ढूंढें इसे, इसके अंदर उसके भेद हैं यहोवा परमेश्वर के। आपको पता लगेगा यहोवा परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। तब मोसेस को अंदर आने दिया यहोवा ने। वो अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। ये जो ग्रेस, हाइपर ग्रेस है ना, ये बहुत चीप ग्रेस बना के पेश किया लोगों ने। हालेलुया। तो ये जो तंबू बनाया राजा दाऊद ने, वो नाचता आया, उसने यहोवा के लिए एक पवित्र तंबू मुकर्रर किया। और उसने क्या मुकर्रर किया? उसने 24 कोर्सेस बना दिए याजकों के। एक एक वीक तक याजक सेवा करता था, सबत से लेके अगली सबत तक। हालेलुया। आपको मालूम, वही कोर्स जो बना, उसी कोर्स के अंदर अगर दूसरा सैमुएल 8 का 17 पढ़ेंगे और पहला इतिहास 18 का 16 पढ़ेंगे, ये जो है ये एक कोर्स है, 8वां कोर्स। पहला इतिहास 24 के 10 में लिखा है। 8वां कोर्स है, ये अबीजा नबी का है। इसी कोर्स के अंदर 1000 साल बाद आपको मालूम कौन याजक आता है? जकरिया।
और लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 5 से 23 वचन में लिखा है कि वो इसी कोर्स में, ये कोर्स चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए, हमारे में भी ये चल रहे हैं, मलकी सिदक के ऑर्डर पे चल रहे हैं यही कोर्सेज। स्वर्ग में यही चल रहा है, 24 एल्डर्स, यही कोर्स चल रहा है स्वर्ग के अंदर उसकी आराधना का। हालेलुया। उसके अंदर टैप करें आप, वो सीक्रेट ढूंढें, उसके अंदर घुस के आराधना करें यहोवा की। तो वहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, सेवा कर रहा है यहोवा की, होली प्लेस में है, जहाँ पे ये है मनोरा है और जहाँ पे वो गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस है। धूप चढ़ा रहा है, वो धूप चढ़ रही है यहोवा के हुजूर में, और गेब्रियल आ गया, जिब्राइल, और वो उससे कहता तेरे घर में बेटा होगा। मैं आपको पूरी एग्जैक्ट डेटें बता दूंगा इसकी, कोर्सेस की कौन कौन सी डेट्स हैं, कौन सी डेट पे पहला कोर्स शुरू किया, कौन सी डेट थी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता यहाँ पे कर रहा था, और कौन सी डेट को उसका कोर्स ख़त्म हुआ, और प्रोबेबली कौन सी डेट को यूहन्ना उसकी माँ की कोख में कंसीव किया गया, और जीसस क्राइस्ट की पूरी एग्जैक्ट डेट भी निकाली जा सकती है। हालेलुया। वही कोर्स चला आ रहा आगे। हालेलुया। 24 कोर्सेज। वो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा दाऊद यहोवा के ऐद के संदूक को ले आया और उसने तंबू में ऐसे ऐद के संदूक को रखा। उस तंबू में आपको मालूम पर्दा नहीं है। मूसा के खैमा में एक पर्दा था, जानवर की कई खालों से बनाया गया, कई लेयर का पर्दा था। जूइश रिसोर्सेज बताते हैं कि वो 500 किलो का होता था पर्दा। उस पर्दे के अंदर हाथी के दांत की नक्काशी, सोने की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। उसको 72 इज़राइल की कुंवारी लड़कियां बनाती थी। और जोसीफस जो हिस्टोरियन है यहूदियों का, एक बड़ा हिस्टोरियन है, उसने 2 मेजर वॉल्यूम लिखे हैं। अगर आप जोसीफस की बुक्स पढ़ेंगे, वो लिखता है कि अगर दोनों दिशाओं में उन पर्दे के साथ एक इधर हाथी बांध दो, एक दूसरी तरफ बांध दो, वो उसे खींचें तो भी वो पर्दा फटता नहीं था। थिक था पर्दा, 5 to 7 इंचेस थिक, और उस पर्दे के अंदर कोई दरवाज़ा नहीं। तो महायाजक कैसे जाएगा दूसरी तरफ अति पवित्र स्थान में जहाँ ये है ऐद का संदूक, यहोवा परमेश्वर के आगे प्राश्चित करने के लिए। योम किपुर, योम का मतलब दिन, किपुर का मतलब प्राश्चित, इधर लहू उंडेलेगा। वो एक कलश में अपने लिए बैल का लहू लेके जाएगा, क्योंकि उसको अपने पापों का भी प्राश्चित चाहिए महायाजक को। लेकिन हमारे महायाजक को अपने पाप के लिए कोई प्राश्चित नहीं चाहिए, क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर का मेमना था। हालेलुया। और वो बकरों, छतरों, मेमनों का लहू लेकर नहीं गया, वो अपना ही लहू लेकर गया इधर। हालेलुया। अति पवित्र लहू, और परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा पूरी मानव जाति के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। हालेलुया। तो महायाजक कैसे जाता था? वो धुआं जो उठता था, धुएं का बादल उसे ट्रांसपोर्ट करता था। हालेलुया। क्योंकि डोर नहीं है उसमें, क्योंकि अभी वो आया नहीं जिसने ये कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर, जो मेरे द्वारा अंदर आएगा उसे चारा मिलेगा, जीवन का चारा। हालेलुया। तो राजा दाऊद ने जो खैमा बनाया अद्भुत है वो। मैं कल आपको बता रहा था भविष्यवाणियाँ, 2 जो भविष्यवाणी मैंने कल आपको बताई कि परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है। परमेश्वर के कलाम में जो अमोस नबी की किताब 9 अध्याय के अंदर वचन लिखा है, अमोस की किताब 9 का 11 और 12 लिख लीजिए बीच में, अमोस 9 का 11, 12, और प्रेरितों के काम 15 का 13 से 18। वहाँ लिखा है मैं फिर आऊँगा, दाऊद के गिरे हुए तंबू को खड़ा करूँगा, यहोवा कहता है। तो याकूब जो यीशु मसीह का भाई है, उसी भविष्यवाणी को लेता है कि यहोवा परमेश्वर कहता है मैं लौटूंगा और दाऊद के गिरे तंबू को खड़ा करूँगा जहाँ पे ये होगा। और अब मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप पढ़िएगा खुद। अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं ये वचन आपके लिए खुद पढ़ूँ, लेकिन मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ। दाऊद के खैमा में क्या अद्भुत बात थी। देखें, दाऊद ने अपने तंबू में गाने वालों को 4000 से ज़्यादा गाने वालों को खड़ा किया। वो दल बांध के गाते थे, 4000 दल बांध के यहोवा के लिए गाते थे लगातार, मतलब ड्यूटीज लगती थी।
दल बांध के पैरों के बीच में, कभी यहोवा की स्तुति खत्म नहीं हुई। मूसा के तंबू में कोई गाता नहीं था, मूसा के तंबू में कोई गवैया नहीं था, दाऊद के खैमा के अंदर गवैये हैं। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे वचन पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊँगा, कुछ आपको देता हूँ। पहला इतिहास उसका 15 अध्याय, मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुन रहे हो सब। पहला इतिहास 15 अध्याय और उसके 16 वचन से मैं पढ़ता हूँ। सुनिए। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को, गवैये, यहोवा के भवन में गवैये आए गाने वाले। हालेलुया। कुलिस्सियों 3 की 16 पढ़ लीजिए। कुलिस्सियों की पत्री निकालिए जल्दी से, कुलिस्सियों 3 अध्याय का 16 वचन। हालेलुया। सुनिए, कुलिस्सियों 3 का 16 क्या लिखा है। प्रभु क्या कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में दिखाई से बसने दो, मसीह के कलाम को दिल में बसने दो। हालेलुया। जैसे आप अपने घर के अंदर बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला के सजाते हो ना, फर्नीचर सजाते हो, ये चीज़ वो चीज़, वैसे कलाम को सजाइए अपने दिल के कमरों में। क्या लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहा करो, लिखा ओरिजिनल टेक्स्ट में। बहुत अद्भुत वचन है ये, कुलिस्सियों 3 की 16। और फिर राजा दाऊद के खैमा में क्या हुआ, राजा दाऊद ने अपने खैमा में साज बजाने वालों को मुकर्रर किया। साज नहीं बजता था कोई, मूसा के तंबू में कोई साज नहीं था। पहला इतिहास 23 अध्याय, पहला इतिहास 23 अध्याय के 5 वचन से पढ़ता हूँ। और 4000 द्वारपाल नियुक्त हुए, 4000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति के लिए बनाए थे। 4000 बंदे साज बजा रहे हैं। देख रहे हैं कितना बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। यहोवा को लेविश स्तुति देना है। हालेलुया। 4000। और इसी का 25 अध्याय पढ़ लीजिए, इसी का 25 मैं पढ़ देता हूँ वचन, ये 25 का 1 से 7। फिर दाऊद ने सेनापति असाफ, हेमान, यदुतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया। वह वीणा, सारंगी, झांझ बजाकर यहोवा के आगे नबूवत करें। ये अलग अलग साज बजाते हैं और साज बजा बजा के नबूवतें भी करते हैं यहोवा के आगे। गवैये हैं। इस सेवा में काम करने वाले मनुष्यों की गिनती ये थी। अब पढ़िएगा कितनी गिनती है लंबी। ये सब यहोवा के आराधक थे। अब मैं चाहता हूँ इफ्सियों की पत्री पढ़ लीजिए जल्दी से। इफ्सियों की पत्री, इफ्सियों की पत्री जल्दी से निकालिए। उसका आप निकाल लीजिए 5 अध्याय, इफ्सियों का 5। सुनिए ध्यान से 18 वचन से सुने। इफ्सियों 5 अध्याय 18 वचन से, दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। जैसे दारू पी के लोग नशे में आते हैं ना, ऐसे पवित्र आत्मा का भी नशा है। लेकिन पवित्र आत्मा के नशे का मतलब ये नहीं कि आप कारपेट के ऊपर रोल करते फिरो और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो चर्च में। नबियों का रूह नबियों के वश में भी होता है। हर चीज़ को बैलेंस रखना है। तो लिखा है, लेकिन बैलेंस अपने आप से नहीं करना, अपनी बुद्धि से, पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। लिखा है, परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। राजा दाऊद ने गाने वाले मुकर्रर कर दिए हजारों, राजा दाऊद ने साज बजाने वाले मुकर्रर कर दिए। और तीसरा काम क्या किया राजा दाऊद ने, लेवी लोग इसके आगे जाके सेवा करते थे। ये प्रिविलेज नहीं थी लेवियों को। सिर्फ महायाजक साल में एक बार जाता था पर्दे के पीछे, किसी को नहीं मालूम था क्या है। राजा दाऊद ने क्या किया, पहला इतिहास अगर उसका 16 वचन पढ़ें, पहला इतिहास जल्दी से निकालिए, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय, पहला इतिहास 16 का 37, पहला इतिहास 16 का 37 सुनिए।
तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाफ और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि वह प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और इनकी गिनती है, हजारों में गिनती है, जो हजारों की गिनती मैं बता दूंगा आपको फिर टोटल निकाल के, कितनी गिनती लेवियों की, कितनी गवैयों की, कितनी साजिंदों की, कितनी प्रीस्ट की, सब राजा दाऊद ने मुकर्रर कर दिया। हालेलुया, कि यहोवा के आगे मिनिस्टर करें। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय जल्दी से निकालें। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 19 वचन। इब्रानियों 6 का 19 सुने अब ध्यान से। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर पहुंचता है। हालेलुया। किधर है? पर्दे के भीतर है, जहां पे क्या है? होली ऑफ होलीज है। यहां तक हमारी रिसाई है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। जीसस इधर हैं, हमारे अगुए हैं, हम भी उन्हीं के खानदान के याजक हैं, रॉयल प्रीस्टहुड हैं। हम भी यहाँ जाके उसकी उपासना करें, यहाँ करें। आपने प्रार्थना यहाँ से करनी है, ना कि पृथ्वी से। लर्न द सीक्रेट टू एंटर हियर सो दैट यू प्रे फ्रॉम हियर। यहाँ से उसके आगे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और आप पढ़ लीजिएगा इसी का लेवी व्यवस्था 10 का, इसका 10 अध्याय का 10 का 19 और 20, 10 अध्याय का 19 और 20, इब्रानियों 10 का 19-20। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, हमें दिलेरी है। हम डर डर के नहीं, पुराने नियम में कैसे जाते थे? डर डर के। वहाँ पे लिखा डरते और कांपते हुए यहोवा के आगे आओ। लेकिन अब हम डरते कांपते नहीं जाते, हम दिलेरी से जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम बड़े पवित्र हैं या हम बड़े राइचियस हैं या हमारे में बड़ी खूबी, वरन हमारा महायाजक ऑलरेडी वहाँ पे है, जो उस पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। ही इज़ अ किंग। वो प्रीस्ट भी है, अभी वो प्रीस्टली मिनिस्ट्री कर रहा है। पृथ्वी पे वो नबी होकर आया था, अभी याजक की मिनिस्ट्री कर रहा है। अब नीचे पृथ्वी पे आके यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर बनेगा, राजाओं का राजा। उसकी थाई के ऊपर लिखा उसका नाम, द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो राजाओं का राजा बन के राज्य करने आ रहा है। सो इसमें और बहुत सी बातें हैं। मैं सोचता हूँ मैं ये सब एक ऑडियो मैसेज भी थोड़ी देर में डाल दूंगा, आप सबको ऑडियो मैसेज में मिल जाएगा बाकी का मैसेज। इट इज़ लिटिल बिट टू मच। तो मैं चाहता हूँ ये सारे सीक्रेट आप सीखें यहोवा के कलाम के, और आप यहोवा के याजक बने और इस जगह जाके, यहाँ जाके आराधना करें, इस जगह पहुँचे और गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस के पास पहुँचे आत्मा में। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शाम को 6 बजे फिर मिलूंगा, लेकिन मैं ये एक ऑडियो मैसेज आपके लिए डालूंगा। दिस इज़ वेरी पावरफुल, सो डीप स्टफ दैट गॉड हैज़ गिवन मी, बट वी जस्ट रन आउट ऑफ टाइम। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। आमीन।